Good morning, students. Today we will start with the remaining insect pests of the chapter, that is insects of economic importance, in which we have completed the 3 insect pests, and today we will start with the remaining insects. So the fourth one is Callicebrucus canensis, and the common name of this insect pest is pulse beetle or the Dora. You have seen this pest many of the times in your pulses and some other food grains also. It is mainly seen in your pulses. Now if we talk about its distribution, it is found in many of the countries such as India, Burma, China, Africa, USA, Philippines, where it damages the beans, grams and many of the pulses. Now talking about the biology. In biology, firstly we will discuss the morphology. So have a look on the diagram. This is the diagram of the pulse beetle. As it is an insect, so the body is divided into head. The smaller part is the head, then is your thorax, and the rest is your abdomen. So the body is divided into head, thorax and abdomen. It shows sexual dimorphism. It is reddish brown in color, and there are little differences found between male and the female. The male that possess monopectinate type of antenna. Now what is monopectinate? I have drawn the diagram of monopectinate antenna here in detail. Here we have the comb-like processes present over one side. Monopectinate means the comb-like processes are present in one side. If the antenna are bipectinate, then these comb-like processes are present on both the sides. Now in case of the male Callicebrucus, these comb-like processes are present on one side. That's why it is called as the monopectinate. Whereas in female, the antenna are serrate type. Serrate are what? Serrate are the saw-like. आपने देखी होगी सॉ, तो सॉ में जैसे जिस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, जिस तरह के एजेस बने होते हैं, बिल्कुल वैसा ही एंटीना जो है वो फीमेल कैलिसोब्रुकस में होता है, राइट. एलेट्रा, जो इसका एब्डोमेन है, दैट इज कवर्ड विद द एलेट्रा. नाउ व्हाट इज दिस एलेट्रा? एलेट्रा इज व्हाट? इट इज एक्चुअली अ विंग. जो थॉरेक्स होता है वहां पे 2 pairs ऑफ विंग्स होते हैं इंसेक्ट्स में. द थॉरेक्स दैट हैव 2 pairs ऑफ विंग्स एंड 3 pairs ऑफ लेग्स, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड. नाउ द 2 pair ऑफ विंग्स, द अपर विंग दैट इज थिक और काफी स्ट्रॉन्ग ये आपका विंग होता है. इट इज मेड अप ऑफ द काइटिन. इसमें काइटिन की डेपोजिशन जो होती है वो काफी ज्यादा होती है. तो ये वाला जो विंग जो आपको नजर आता है, दिस इज द एलेट्रा, दैट इज द अपर विंग विच इज थिक and very chitinous in nature. Whereas the lower wing, जो इसका lower wing होता है वो membranous होता है और बिल्कुल thin होता है. ठीक है. तो मेल्स के केस में क्या होता है? मेल्स के केस में जो एलेट्रा होता है वो एब्डोमेन के बराबर ही होता है. ठीक है. ये एलेट्रा जो है that is the upper wings, they are covering the entire abdomen. Whereas in case of the female, the abdomen is quite longer than the elytra. ठीक है. एब्डोमेन जो वो थोड़ा सा यहाँ से जो है वो प्रोट्यूड करेगा और एलेट्रा थोड़ा सा पीछे ही खत्म हो जाएंगे. सो दिस इज द वन ऑफ द फीचर विच डिफरेंशिएट द मेल फ्रॉम द फीमेल. एंड द मेल्स, दे ऑल्सो हैव द जेनिटल आर्मेचर ऑन द लोअर साइड with which they will transfer their sperms into the females. Now if we talk about the body is approximately 3 to 4 mm. It belongs to the family Bruchidae. As it is a beetle, it belongs to Coleoptera. The class is Insecta, order is Coleoptera and the family is Bruchidae. मैंने आपको पहले ही कहा है कि थोड़ा सा इंसेक्ट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको आपने जरूर ध्यान से थोड़ा सा देखना है अपने फर्स्ट ईयर के बुक से. सो द ऑल द बीटल्स दे कम अंडर Coleoptera. Now coming to the life cycle. Life cycle जो है वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था कि that the life cycle, in how much time the life cycle will be completed, it will depend upon the environmental conditions, कि किस तरह के environmental conditions जो है वो अवेलेबल हैं. ठीक है. अगर environmental conditions favorable होंगी तो आपका लाइफ साइकिल जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाता है. if the environmental conditions are not favorable, then the life cycle is prolonged for a little bit more time. Now the male and the female, they will copulate approximately for the 72 hours, and after that the female will start laying the eggs. The eggs, approximately 100 to 113 eggs are being laid by a female, and which under incubation period of 4 to 5 days. ठीक है. नॉर्मल कंडीशन में 4 to 5 days के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो है एग्स वो हैच कर जाएंगे और यहाँ से
माइन्यूट लार्वा हमारे रिलीज होंगे जिसे ग्रब बोलेंगे. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रब एंड लार्वा. हम यहाँ पे लार्वा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बटरफ्लाईज और मॉथ्स के जो डेवलपमेंट स्टेज है उन्हीं को ही स्पेसिफिकली लार्वा बोलते हैं, जबकि जो आपके बीटल्स होते हैं, जो कोलेप्टरन्स हैं, उनके हम लार्वा को ग्रब बोलते हैं. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस. मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा भी है ताकि आपको क्लियर हो जाए. नाउ द लार्वा ऑफ द बीटल, जो लार्वा बीटल का होता है, एक तो वो उसका कलर बहुत डल होता है. जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है दैट इज वेरी ब्राइटली एंड ब्यूटिफुली कलर्ड. ठीक है, आपने देखे हैं बटरफ्लाईज मॉथ्स के लार्वा जो होते हैं वो उसका कलर्स बहुत ब्राइट होते हैं. जो ग्रब होता है जब वो अपनी लार्वल कंडीशंस में है दैट इज सी शेप. थोड़ा सा इस तरह से इसकी बॉडी जो होती है वो थोड़ा सा मुड़ी हुई होती है इन अ सी शेप. व्हेयरएज अ कैटरपिलर इट इज अ स्ट्रेट लार्वा, राइट. One more difference is there that the caterpillar or the larva of the butterfly that have the legs, fleshy legs present over the thoracic as well as the abdominal region, whereas in case of the grub, that is the larva of the beetles, it don't have the abdominal legs. ठीक है, abdomens में जो है वो legs नहीं होती हैं. And the legs which are present in larva of the butterfly or moth, it have the fleshy legs. Whereas the grub that lack the legs in the abdominal segment, or sometimes the legs are completely absent in case of the larva. It is C shape. जब resting position पे होता है larva तो वो थोड़ा सा C shape होता है, जबकि butterfly का थोड़ा सा straight होता है. ठीक है, so these are some basic difference between a grub and a larva of the butterfly or the moth. Now this grub that will undergo a development of approximately 14 to 21 days and will form the another development stage, that is the pupa. Now this pupa, after pupation, within a week it will form the adult male and the female, and this life cycle will again start in this way. In normal condition, the life cycle that is completed in approximately 1 week, 1 month, and it may be prolonged during the unfavorable conditions. Now coming to the host plant, the larva that feed on the stored grains such as the beans, lentils, arhars, and the many of the other pulses. Now the damage, if we talk about the damage is mainly caused to these grains which are our pulses, right? And the larva, it is more responsible for the damage of the pulses. ठीक है, इतना डैमेज जो है वो अडल्ट नहीं करता जितना लार्वा डैमेज करता है. लार्वा क्या करेगा, it will make the pores within the fresh seed, and the further development will take place within the seeds. ठीक है, सीड्स के अंदर वो बोर्ड कर जाएगा और उसके अंदर ही डेवलपमेंट होगी. तो वो सारा का सारा जो आपका सीड है पल्सेस का, वो उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है. ठीक है, पूरी तरह से उसका जो अंदर का जो भी उसका मटेरियल है उसको वो पूरी तरह से अपना फूड जो है वो बना लेता है. ठीक है, ऐसे ही जब कहीं पर भी कोई इस तरह के जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जिन आपके पल्सेस में या जिन ग्रेन्स में होते हैं, वहां पे और सेकेंडरी फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जो है वो बहुत इजीली हो जाता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल. फर्स्ट मेजर इज द क्वारंटीनिंग. सो व्हाट वी डू इन दिस, वी कैन स्टेरिलाइज द सीड्स बिफोर द स्टोरेज. ठीक है, पल्सेस जो है वो आपको पता है ये फ्रेश पल्सेस को यूज नहीं करते. पल्सेस जो है बेसिकली सीड्स ही होते हैं प्लांट्स के, तो उनको जो है वो स्टोरेज से पहले स्टरलाइजेशन कर लेने चाहिए, और दे मे बी हीटेड अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 165 to 12 hours, और दैट कैन बी फ्यूमिगेटेड. द गोडाउन्स दैट मे बी फ्यूमिगेटेड विद द कार्बन टेट्राक्लोराइड और द कार्बन बाइसल्फाइड. वन मोर थिंग इज दैट विच वी कैन डू, वी कैन मेक अ थिक लेयर ऑफ सैंड बिलो द कंटेनर्स. उससे क्या होगा कि जो आपके ये इंसेक्ट पेस्ट है वो कंटेनर्स के ऊपर की ओर जो है वो नहीं आ पाएंगे. ठीक है, और वी कैन मिक्स द ग्रेन विद द hydrated lime or the pyrethrum. So these are the some preventive measures. Now the next insect of economic importance is the Cytophilus oryzae. Now I want to tell you that in these names, जो zoological name हम करते हैं या कोई भी हम botanical name, कोई भी scientific name करते हैं, तो उसमें कई बार ब्रैकेट में ये कुछ लिखा होता है. So what is this? This is the actually name of the person who have given this name.
So this is Linnaeus and the short form of Linnaeus is Linne. Linnaeus ने बहुत सारे एनिमल स्पीशीज के नाम दिए हुए हैं, तो बहुत सारी स्पीशीज में उनका नाम ही आगे आता है लीनियस। तो कभी भी अगर इस तरह से लिखा होगा आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन हु हैव गिवन दिस नेम। नाउ Cytophilus oryzae, this is the rice weevil and this is a native pest of India, right? That means it have been originated in India and through the trade it have been spread to the many parts of the world. It is found in near about all the countries of the world. ठीक है, अब जिन कंट्रीज में ज्यादा नुकसान होता है वो कौन से रीजन में आते हैं? टेम्परेट रीजन में। नाउ कमिंग टू द बायोलॉजी ऑफ द पेस्ट, फर्स्ट इज द मॉर्फोलॉजी। The beetle is reddish brown in color. We called it as rice weevil. अब ये weevil और beetle में क्या फर्क होता है? It is also a coleopteran, that means it is also a beetle. लेकिन जिन beetles में जो स्मॉल साइज के होते हैं और आगे की ओर ये प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर जिसको हम स्नाउट या रोस्ट्रम बोलते हैं, उसी को हम स्पेसिफिकली बीटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि बीटल्स, कौन से बीटल्स को वीवल्स बोलेंगे? वीवल कौन से होंगे? जिनमें ये स्नाउट प्रेजेंट होगा। सो as the snout is present in Cytophilus oryzae, so that's why we call it as the rice weevil, not the rice beetle. Okay, so it is a beetle but specifically a weevil. Talking about its morphology, the male, that is smaller in size, approximately 3 mm, whereas the female is longer, which is 4 mm. The body is divided into small head, thorax and the abdomen. The thorax and abdomen are approximately of the same size. इनका साइज जो है वो एक ही जैसा होगा। And the eyes are present on the head on the lateral sides. And the snout is seen on the interior end. The snout bears the mandibles on the interiormost part, which help in crushing or which help in making a pore within the rice. ठीक है, तो ये जो आपके बीटल्स हैं इनके माउथ पार्ट्स च्यूइंग और बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। जो पहले हमने कैलिसोप्रोकस काइनेंसिस किया उसके माउथ पार्ट्स भी च्यूइंग और बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, राइट। नाउ दिस एलेट्रा, अगेन व्हाट इज एलेट्रा? एलेट्रा इज द अपर विंग of the insect, which is having a more chitinous deposition, whereas the lower wing is membranous. ठीक है, तो ये जो एलेट्रा है it has the 4 yellowish spot, यहाँ पे नजर नहीं आ रहे लेकिन 4 yellowish spots जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पेसिफिक है हमारे राइस वीवल के लिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट एंटीना, द एंटीना आर एल्बोड एंटीना। एल्बोड मतलब कि पीछे जो एंटीना है वो कुछ इस तरह से है और आगे थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका राउंडेड सा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एल्बोड एंटीना। नाउ क्लासिफिकेशन, इट इज अ कोलियोप्टेरन, और फैमिली भी जो है वो आपने थोड़ा सा फैमिली का भी सबकी फैमिली का भी जो है वो ध्यान रख लेना है। नाउ कमिंग टू द लाइफ साइकिल, दिस इज द लाइफ साइकिल विच इन नॉर्मल कंडीशन इज कंप्लीटेड इन 4 to 7 weeks. The male and female, they will copulate and will lay, the female will lay eggs. The female lays approximately 4 eggs per day, so that in total 400 to 250 to 400 eggs are laid in total by one female. ठीक है, तो इतने ज्यादा एग्स जो है वो एक फीमेल ले कर लेती है ड्यूरिंग हर लाइफ स्पैन। अब ये एग ले कहाँ पे करते हैं? कहीं पर भी जो हमारा राइस है वहां पर कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी क्रिवाइसिस प्रेजेंट है तो उन क्रिवाइसिस पे ये जो फीमेल है वो अपने एग्स ले कर देती है एंड इट प्लग इट विद द सीमेंटिंग मटेरियल सो दैट द एग्स दे मे नॉट फॉल। ठीक है, तो एग्स को इसके साथ अटैच कर देती है एक सीमेंटिंग मटेरियल की हेल्प से, जिसके बाद जब इसमें से ग्रब्स इमर्ज करेंगे तो वो डायरेक्टली इसके अंदर क्या करेंगे? पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, नाउ after 6 to 7 days, after an incubation period of 6 to 7 days, these eggs they will form the grubs, not the larva. ठीक है, तो ये डेज जो भी दिए बेटा ये डिपेंड करता है कि आपको जो कंडीशंस है वो किस तरह की मिल रही है। ठीक है, अगर कंडीशंस फेवरेबल है तो टाइम कम लगेगा, अनफेवरेबल में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। नाउ दिस ग्रब after 19 to 34 days will form the pre-pupal stage and within 1 and 2 days it will form a pupal stage. जो ग्रब होता है उसका पहले जो कलर है वो थोड़ा सा क्रीमिश कलर का होता है। हमने चावलों में बहुत बार देखी है
क्रीमिश कलर के इसके ग्रब्स हमने बहुत बार देखे हुए हैं, एंड लेटर ऑन दे बिकम ब्राउनिश। ये भी हमने बहुत ध्यान से देखा, जो छोटे छोटे ग्रब्स होते हैं वो उनका बिल्कुल व्हाइटिश या क्रीमिश कलर होता है। जब वो थोड़ा सा उनका साइज बड़ा हो जाता है तो वो थोड़े से क्रीम आपके जो है वो थोड़ा सा उनमें ब्राउनिश कलर आने लग पड़ता है, ठीक है। उसके बाद प्यूपा में क्या हो जाता है, प्यूपा विल डेवलप cuticle and it will start the next stage of the life cycle and within 3 to 6 days it will form the adults, ठीक है। तो अगर हम बात करें complete life cycle, the life cycle is completed within the 4 to 7 days and 4 generation, approximately 4 generations are seen of this insect within 1 year. Now coming to the host plant. Host plant, it is the rice. Rice is the main host plant, but it is also a polyphagous insect. That's why it can also feed on the maize, jowar, wheat, barley and the bajra. ठीक है, लेकिन ज्यादा जो नुकसान है वो किसको होता है, आपके राइस को ही होता है। राइस को ज्यादा फीड करते हैं। डैमेज, इट कॉजेज द डैमेज टू ऑल दिस प्लांट्स। जो लार्वा है वो कॉटन सीड्स को भी या बाजरा या ओट सीड्स को भी जो है वो फीड करता है, ठीक है। तो larva as well as adults, both of them causes damage, but larva causes that causes more severe damage, ठीक है। और डैमेज कब ज्यादा होता है, जब आपका रेनी सीजन होगा, दैट इज द अगस्त टू द अक्टूबर। जो रेनी सीजन के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर जब ज्यादा होता है एनवायरमेंट में रेनी सीजन के दौरान, तो उस समय पे जो भी आपके इंसेक्ट्स हैं उनका डैमेज जो है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल। The prevention and control first includes the quarantining. बिल्कुल वैसे ही है कि आपने जो गोडाउन्स हैं उनको हीट अप कर देना है 165 डिग्री के लिए या उनकी फ्यूमिगेशन के लिए। तो आपके जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं। फ्यूमिगेशन में बिल्कुल वैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड से आप जो है वो गोडाउन्स को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द केमिकल कंट्रोल। वी कैन ऑल्सो यूज सम केमिकल्स सच एज द एरोसोल्स ऑफ द पायरेथ्रम और मिथॉक्सिक्लोर कैन ऑल्सो बी यूज्ड. Now the last pest of this chapter is the Tribolium castaneum. It was given by Herbst. Now this Tribolium castaneum, it is called as the red floor beetle. हमने बहुत बार अपने जो घर में फ्लोर आता है उसमें इस बीटल को देखा और आजकल तो हमें रेनी सीजन में ये बहुत ज्यादा मिलता है. This red floor beetle, it causes 85% of the insect population that infest the wheat. ठीक है, तो सबसे ज्यादा वीट को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो यही वाला आपका इंसेक्ट पेस्ट है, दैट इज द ट्राइबोलियम कैस्टेनियम. नाउ द नेक्स्ट इज द बायोलॉजी. If we talk about biology, first is the morphology. The adult is the insect, so the body again is divided into head, thorax and abdomen. But here the abdomen is longer than the thorax and it is dark in color. ठीक है, एलेक्ट्रा जो है उससे इसका कलर एब्डोमेन का थोड़ा सा क्या होता है, डार्क होता है. एंड बोथ थॉरेक्स एंड एलेक्ट्रा दैट हैव अ सीरीज ऑफ पिट्स. ठीक है, सीरीज ऑफ पिट्स भी हैं और ये स्ट्रिएशंस जैसी जो है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी. यहाँ पर थॉरेक्स में स्ट्रिएशन ज्यादा होती हैं, इसलिए आपको ये लगभग प्लेन ही लग रहा है. बट द स्ट्रिएशंस आर मोर प्रोमिनेंट इन द एब्डोमेन बिकॉज दे आर फार फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, सो if we talk about the antenna, they have the जो इसके लास्ट के 3 सेगमेंट्स हैं, लास्ट के 3 सेगमेंट्स हैं वो थोड़े से एनलार्ज हैं. ठीक है, और थोड़े से स्क्वायरिश शेप है. तो ये बड़े जो इस तरह के एंटीना है वो इसके लिए स्पेसिफिक है, दैट इज फॉर द ट्राइबोलियम कैस्टेनियम. नाउ द लेंथ ऑफ द बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 mm. क्लासिफिकेशन आपने थोड़ा सा यहाँ से देख लेना है. अगर आपको फैमिली लर्न नहीं रहती है तो आपको कम से कम ऑर्डर जो है वो लर्न होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ बीटल, सो इट विल कम अंडर कोलेप्टरा. नाउ कमिंग टू द लाइफ साइकिल. सो दिस इज अ जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइबोलियम कैस्टेनियम. द लाइफ साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली फॉर द 2 years. ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशंस रहते हैं और फेवरेबल कंडीशंस हैं तो लाइफ साइकिल जो है वो 6 months से 2 years तक हो सकता है. एंड द मेल एंड द फीमेल बोथ शोज द पॉलीगाइनी एंड द पॉलीएंड्री. मेल जो है वो आपका पॉलीएंड्री शो कर रहा है, फीमेल जो है पॉलीगाइनी शो कर रहा है. दैट मीन्स मेल विल copulate with multiple females and the female simultaneously will copulate with the multiple males. So this is a sort of adaptation with which the male and female that have the more chances of fertilization and producing large number of the eggs.
ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल्स और फीमेल्स की कॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक टर्म यहाँ पे दी हुई, दैट इज दी प्रॉक्सी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन के अलावा एक नई टर्म दी है प्रॉक्सी फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो मेल्स हैं जब वो कॉपुलेट करते हैं फीमेल के साथ, देन दे विल ट्रांसफर देयर स्पर्मेटोफोर्स। नाउ स्पर्मेटोफोर्स आर व्हाट? स्पर्मेटोफोर्स आर द स्ट्रक्चर्स which are released by the males over the body of the female or some other part, और किसी और स्ट्रक्चर पे ये रिलीज करते हैं फीमेल की बॉडी के अलावा, जहां पर इस स्पर्मेटोफोर में मेल्स के स्पर्म्स जो है वो सारे के सारे स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो जब ये फीमेल की बॉडी पे ले करे इसको शेड करेगा तो कॉपुलेशन के जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो एज द मेल एंड फीमेल दे बोथ शो पॉलीएंड्री एंड पॉलीगाइनी। तो एक मेल जब फीमेल के साथ कॉपुलेट करता है तो वो अपना स्पर्मेटोफोर इसके ऊपर जो है वो अपना स्पर्मेटोफोर जो है इसके ऊपर वो डिसलॉक कर देगा, वो इसके ऊपर जो है वो रख देगा। वेन द नेक्स्ट मेल विल कम, जब नेक्स्ट मेल आएगा तो नेक्स्ट मेल क्या करता है, जो पहले वाले मेल के जो स्पर्मेटोफोर है उसको वो वहां से हटा देता है और अपने स्पर्मेटोफोर को ट्रांसफर कर देता है, सो दैट द मेल गेट द मेल स्पर्म्स ऑफ द सेकेंड मेल दैट गेट फर्टिलाइज विद द फीमेल, ठीक है। तो इस तरह से ये होता रहता है। एक और इसमें जो चीज है जो प्रॉक्सी फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या होता है कि एक मेल जो है जब वो फीमेल के साथ कॉपुलेट कर रहा है, इस फीमेल के पास पहले से ही एक और स्पर्मेथिका प्रेजेंट है जो इसको पहले वाले मेल ने दिया था, ठीक है। तो ये पहले वाले मेल ने जो स्पर्मेथिका दिया था जब ये इसके साथ कॉपुलेट कर रहा है, सो दिस स्पर्मेथिका बाय चांस गेट अटैच टू दी एडिएगस, दैट इज द इंटरमिटेंट ऑर्गन विद विच इट ट्रांसफर्स द स्पर्मेथिका, उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना स्पर्मेथिका तो इसके साथ रिलीज कर देगा, लेकिन गलती से या बाय चांस द स्पर्मेटोफोर्स ऑफ द सेकंड मेल दैट इज ट्रांसफर टू दिस मेल। अब ये मेल जाएगा किसी और फीमेल के साथ कॉपुलेट करेगा। अब ये अपना स्पर्मेटोफोर तो डालेगा ही डालेगा, वहां पे उसकी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर करेगा ही, लेकिन ये पहले वाला मेल है, इस पहले वाला मेल का भी स्पर्मेटोफोर जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये वाली फीमेल जो है वो स्पर्म्स इसके भी यूज कर रही है और इस मेल के भी स्पर्म्स यूज कर रही है जिसके साथ इसकी कॉपुलेशन हुई ही नहीं। सो दिस इज दी प्रॉक्सी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने मेंशन कर देना है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है, बट यू शुड नो व्हाट इज प्रॉक्सी फर्टिलाइजेशन इन विच द फीमेल दैट गेट द स्पर्म्स ऑफ अ मेल विद विच इट हैव नॉट कॉपुलेटेड। सो दिस इज दी प्रॉक्सी फर्टिलाइजेशन। और फीमेल क्या करती है, फीमेल में प्रेफरेंस क्या होती है कि जो लास्ट में इसके साथ कॉपुलेट करेगा, जो मेल लास्ट में कॉपुलेट करेगा उसी मेल के स्पर्म्स के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं टू गेट फर्टिलाइज विद द एग्स ऑफ दिस फीमेल। Now a female that have a capacity that it can lay approximately 1000 of eggs in its lifetime and the eggs are laid in the groups। तो आपकी बुक में ये यहाँ पे डचेस लिखा हो, दिस इज लॉन्ग, दिस इज द क्लचेस, क्लचेस इज द ग्रुप ऑफ एग्स। तो जो फीमेल एग्स ले करेगी दे आर बीइंग लेड अप्रोक्सीमेटली इन अ ग्रुप ऑफ 50 के ग्रुप्स में एग्स ले करती है। नाउ द एग्स विल अंडरगो अ डेवलपमेंट पीरियड ऑफ 5 to 12 days and after that it will converted to the grub or the larva। आपने ग्रब ही लिखना है, यहाँ पे लार्वा नहीं लिखना है। नाउ दिस ग्रब आफ्टर 29 days or after approximately 1 month, after 1 month and having 6 to 7 molds it will be converted into pupal stage, ठीक है। तो 6-7 इसमें मोल्ड्स होंगे, उसमें बाद ये प्यूपा बन जाएगा और प्यूपा बनने के बाद 1 वीक के बाद जो है अडल्ट और मेल और फीमेल जो है वो इसमें बन जाते हैं, ठीक है। सो जो यहाँ पे एक नई टर्म हमारे पास आई है दैट इज दी प्रॉक्सी फर्टिलाइजेशन, तो आपने ये जरूर इसके बारे में मेंशन कर देना है। नाउ कमिंग टू द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट जो है वो आपका फ्लोर ही है, लेकिन इसके अलावा वो बाकी और भी बहुत सारे आपके होस्ट प्लांट्स है जिसके ऊपर अटैक करता है ये। सो इट अटैक द अदर स्टार्की मटेरियल सच एज योर बेकिंग पाउडर और द नट्स और द ड्रग्स एंड मेनी अदर फूड स्टफ्स आर ऑल्सो बीइंग इन्फेस्टेड बाय दिस insect pest। Now the damage, the larva, it is more damaging, the larva that causes more damage to the floor, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अभी हम देखते हैं हमारे रेनी सीजन में बहुत सारे ये जो अडल्ट्स हैं वो हमें फ्लोर में देखने को मिलते हैं। हमने बहुत बार देखा, अगर हम अपने फ्लोर को देखेंगे तो हमें जरूर नजर आएगा। एंड
the larva or the grubs are also seen. अगर बहुत ज्यादा आपका जो फ्लोर है अगर उसमें ये इंसेक्ट्स होते हैं तो उसका कलर और टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाता है, फिर वो आपको फ्लोर जो है उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं लगता है. नाउ द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल मेजर्स. कल्चरल मेथड बिल्कुल इजी है कि आपका जो फ्लोर है उसको आपने ड्राई और क्लीन रखना है. वैसे जो लोग जिनके घरों में अपने ग्रेन्स निकलते हैं तो ग्रेन्स को पहले अच्छे से सुखाया जाता है, उसके बाद ही उसे जो है वो फ्लोर बनाने के लिए आपके मशीन्स में जो है भेजा जाता है. ठीक है, तो उसको वो उसकी प्रॉपर ड्राइंग क्यों करते हैं? ड्राइंग करने का बेसिकली रीजन यही है कि उसमें से मॉइस्चर जो है उसका कंटेंट कम हो जाएगा, तो उसमें इंसेक्ट की इन्फेस्टेशन जो है वो कम होगी. ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए तभी उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से होती है. Now the next is the physical method. We can maintain a temperature of 50 degrees Celsius in our storage houses so that we can prevent this floor beetle. Next is we can use the diatomaceous earth. What is diatomaceous earth? Diatomaceous earth is actually a soft siliceous sedimentary rock which is crumbled into fine white powder. ठीक है, तो अगर आप ये अप्लाई करते हैं अपने स्टोरेज हाउसेज में तो इसके ऊपर भी जो है वो इन बीटल्स का, ये जो आपके बीटल्स हैं इनका अटैक जो है वो कम होता है. नेक्स्ट इज दी केमिकल कंट्रोल. केमिकल कंट्रोल जो है वो सभी का लगभग एक जैसा ही है. द केमिकल कंट्रोल इंक्लूड्स द यूज ऑफ द पायरेथ्रम एरिसोल्स और द cinnamon that can be also used. So our last type of control is biological control, in which we can use a fungus Beauveria bassiana, which is an entomopathogenic fungus. Entomopathogenic fungus means the word ento is used for the insects. So a fungus which attacks the insects is called as the entomopathogenic fungus. So this fungus can be used to control the various pests, including this one. So that's all for this chapter, that is the insects of economic importance. Thank you.